वबरकातुहू। बस औकात हदीस मुरसल होती है, उसको कुछ रावी मुत्तसिल बना देते हैं। और कभी कभी इसके बरअक्स भी हो जाता है, यानी मुरसल रिवायत को मुत्तसिल और मुत्तसिल को मुरसल बना देते हैं। वसल और इरसाल ये काफ़ी जगहों पर हमें ये बात मिलती है। वसल और इरसाल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का क्या मनहज है, इस पर भी हम बात करते हैं। पहले कुछ आरा सुन लें मुहद्दिसीन की। एक रावी हैं इब्राहीम बिन हकम बिन अबान, मुहद्दिसीन ने इस पर जरा की है। इमाम इब्न अदी लिखते हैं बलाऊहु मिम्मा ज़करूहु अन्नहु काना यूसिलुल मरासीला। इसकी ये मुसीबत थी इस रावी की कि ये मुरसल को मुत्तसिल बना देता था। मुरसल को मुत्तसिल ये रावी बना देता था। इस वजह से मुहद्दिसीन ने इस पर क्या कर दी, जरा की। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, अगर कोई हदीस मुरसल है उसको कोई मुत्तसिल बना देगा तो ये काम खराब कर रहा है। भाई मुरसल है तो मुरसल होनी चाहिए ना। वो गलती से या जानबूझकर उसको मसूल कर दे, मुत्तसिल कर दे, तो ये भी असबाब जरा में से एक सबब है। तो इब्न अदी ने कहा इब्राहीम बिन हकम बिन अबान के हवाला से बलाऊहु मिम्मा ज़करूहु अन्नहु काना यूसिलुल मरासील अन अबीही व आमतु मा यरवीही ला युताबउ अलैहि। अक्सर जो ये रिवायत बयान करता है इस पर कोई भी मुताबत करता नहीं, यानी कोई भी मुवाफ़क़त नहीं करता। अल्लाह अकबर। जब हम मुहद्दिसीन को देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। पहला कौल है मुतलक तौर पर इत्तिसाल को तरजीह देते हैं। जब इत्तिसाल और इरसाल का आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वो मुतलक तौर पर इत्तिसाल को तरजीह देते हैं, यानी वो मुत्तसिल को कबूल करते हैं, उससे हुज्जत लेते हैं, उसको मुरसल नहीं समझते। ये जमहूर फुक़हा की राय है, जमहूर फुक़हा की। मुक़द्दमा इब्न सलाह सफ़ा नंबर 34 में आप ये देख सकते हैं। दूसरा कौल कि जब मुरसल और इत्तिसाल का तारुज़ आ जाए, दूसरा कौल है कि मुरसल को ही तरजीह देंगे। किसको तरजीह देंगे? मुरसल को तरजीह देंगे इत्तिसाल पर। अल किफ़ाया सफ़ा नंबर 411, अनुक़त इब्न हजर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 604 वगैरह में ये अबास देख सकते हैं। 412 दक्तूरा हिस्सा साहिबा ने इस पर काफ़ी मुफस्सल बात की है, तरफ़ैन के दलाल लिखे हैं, फिर उनका मुहासबा किया है, मुनाक़शा किया है। तीसरा कौल है
کہ جب وصل اور ارسال کا فرق آ جائے، تعارض آ جائے، وہ ایک ہی راوی سے ہو سکتے ہیں، کبھی وہ وصل بیان کر رہا ہے، کبھی وہ مرسل بیان کر رہا ہے، یا الگ الگ راویوں سے بھی ہو سکتا ہے، ایک راوی اس کو مرسل بیان کرتا ہے، دوسرا راوی اس کو متصل بیان کرتا ہے۔ تو بعض نے کہا تیسرا قول کہ وہاں ہم ترجیح کے قرائن تلاش کریں گے کہ کس کو راجح کہیں، متصل کو راجح کہیں یا مرسل کو، وہاں دلائل ہم اکٹھے کریں گے، قرینے دیکھیں گے۔ پہلا قرینہ حفظ کا ہے، حفظ کا۔ متصل بیان کرنے والا راوی اگر بڑا حافظ ہے، ثقہ ہے، اوثق ہے، اس کو ترجیح دیں گے۔ بیٹا مرسل بیان کرنے والے کا حافظہ غیر قوی ہے، تو جو متصل بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ زیادہ قوی ہے، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ زیادہ قوی والے کو۔ دوسرا قرینہ ہے کہ اکثر کس طرف ہیں، اکثر اکثریت کو ترجیح دیں گے، یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ اگر اکثر راویوں نے مرسل بیان کی ہے تو اس کو ترجیح دے دیں گے، اگر اکثر راویوں نے متصل بیان کی ہے تو اس کو ترجیح دے دیں گے۔ التبصرہ والتذکرہ للامام العراقی، جلد 1 صفحہ 177 ہے۔ تیسرا قرینہ کہ ان راویوں میں سے کون راوی ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، ملازمت، اختصاص زیادہ کن کو حاصل ہے، وہ دیکھیں گے۔ طباب شاہ دیکھیں گے، طباب دیکھ لیں گے کہ اس راوی کے کلاس فیلو، اس طبقہ کے راوی کس کو بیان کر رہے ہیں، مرسل کو یا متصل کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مطلق طور پر وصل کو قبول کرتے ہیں، ان کی بات غلط ہے۔ اتحاد مجلس بھی ایک قرینہ ہے، اتحاد مجلس۔ بہرحال دکتورہ حصہ صاحبہ نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے، بڑی مفصل، کہ وصل اور ارسال میں اختلاف ہو جائے تو کس کو ترجیح دینی ہے، یہ آپ یہاں سے ضرور بحث پڑھیں۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بن یوسف الجدائی صاحب نے تحریر علوم الحدیث جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 670 ہے، اس میں بھی مختصر جامع معنی بحث کی ہے، توجہ فرمانا۔ یعنی یہ خلاصہ یہی ہے کہ قرائن دیکھیں گے، ترجیحات دیکھیں گے، جو قرینہ ہمیں ملے گا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ جہاں ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ منقطع روایت کو متصل بیان کر دیا گیا، منقطع روایت کو متصل بیان کیا گیا، یہاں ایک تفصیلی روایت موجود ہے، یہ آپ پڑھیں، سب میں نے بتا دیا ہے۔ میرے عزیزو، امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا منہج تھا وصل اور ارسال میں، کیا منہج تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ
अक्सर तौर पर तारीखुल कबीर में मुरसल को वसल पर तरजीह देते हैं, मुरसल को वसल पर तरजीह देते हैं, और कभी कभी वो मुत्तसिल को तरजीह देते हैं मुरसल पर। ये डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला अहमद मंसूर साहब कहते हैं, मैंने ततब्बो किया, मुकम्मल पढ़ा मैंने तारीखुल कबीर को, बाद जगहों पर इमाम बुखारी ने मौसूल को मुरसल पर तरजीह दी है। जब इमाम बुखारी दलील देखते हैं या दूसरी सनद देखते हैं कि उसमें तो वो मुत्तसिल है और वो रावी भी ज़्यादा हाफिज हैं, ज़्यादा सिका हैं, ज़्यादा कवी सनद है, तो उसको तरजीह दे देते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर साहब लिखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिसालें मुझे मिली हैं कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह जिस रिवायत को मुरसल को तरजीह दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, या मुत्तसिल को तरजीह दे रहे हैं वसल और इरसाल के फ़र्क में, तारुज़ में, तो वहाँ मैंने देखा है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन की इमाम बुखारी मुवाफ़क़त कर रहे होते हैं। अगर इमाम बुखारी ने मुत्तसिल को तरजीह दी है तो इमाम अहमद, अबू ज़ुरा, अबू हातिम इब्न मईन, दारक़ुतनी वगैरह वो मुवाफ़क़त कर रहे हैं उन सब की। इससे साबित होता है कि इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन का मनहज एक ही है वसल और इरसाल की बहस में। डॉक्टर साहब ने यहाँ तफसील लिखी है कि मुरसल को तरजीह देनी है वसल पर, इसकी वजूहात क्या हैं? मुरसल को क्यों हमने तरजीह देनी है मुत्तसिल पर? उन्होंने 8-10 यहाँ उनकी वजूहात लिखी हैं। पहली, सिका औसक की मुखालफत कर रहा है। क्या मतलब? सिका मुत्तसिल बयान कर रहा है, औसक मुरसल बयान कर रहा है, तो किसको लेंगे? राजे कहेंगे औसक की रिवायत को। सिका जिसके हाफजे में कुछ खराबी है ये मुखालफत कर रहा है उस सिका से जिसके हाफजे में कोई खराबी नहीं है। क्या मतलब? अच्छे हाफजे वाला मुरसल बयान कर रहा है, छोटे हाफजे वाला या कुछ हाफजे में खराबी है वो उसको मुत्तसिल बयान कर रहा है, तो किसको लेंगे? मुरसल को। सिका सिकात की एक जमात की मुखालफत कर रहा है। क्या मतलब? एक जमात सिकात की मुरसल बयान कर रही है और एक सिका वो मुत्तसिल बयान कर रहा है, किसको तरजीह देंगे? जमात की। जमात को, जमात ने मुत्तसिल कहा तो हम भी मुत्तसिल कहेंगे। फिर लिखा है कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह सिका की ज़्यादती को मुतलक तौर पर कबूल करते नहीं, और यही राजे बात है। बेटो, सिका की ज़्यादती मुतलक ना मरदूद है ना मकबूल है, बल्कि इसमें तफसील है। करैन, दलाल, तरजीहा देखेंगे, फिर जाकर फैसला करेंगे सिका की ज़्यादती लेनी है या नहीं लेनी। इसके बाद के ये एक मिसालें जिक्र की हैं, सफ़ा नंबर 330 से लेकर 350 तक, 353 तक ये सारी मिसालें ही जिक्र की हैं। इमाम बुखारी कैसे करैन देख कर फैसला करते हैं कि यहाँ मुत्तसिल को तरजीह देनी है या मुरसल को। ये आप
منہج الامام البخاری فی التعلیل، بہت اچھی کتاب ہے، دکتور احمد عبداللہ احمد منصور سی، اللہ نے کو جزائے خیر دے، انہوں نے بات کا حق ادا کر دیا، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ یہ جو کتابوں کے میں نے حوالے دیے یہ ضرور دیکھیں، یہی طریقہ ہے ایک بات کو سمجھنے کا کہ ایک بات کو متعدد کتابوں میں دیکھا جائے تو شرح صدر ہو جاتی ہے، اس علم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، باریکیاں سمجھا جاتی ہیں۔ رضوان کو بلائیں۔ بارک اللہ فیکم۔